Welcome, dear students. I hope you all are doing well as you people are giving board exams. So, I wish you all the best for the remaining papers, and I hope that you must have done good in already done papers like you had English paper. So now since we are going to have our maths exam on 21st March, so you must be thinking for some of the important questions. आप लोग के मन में ये ज़रूर होगा कि आपको चैप्टर वाइज important questions थोड़े मिल जाएं so that you can practice at the end. आप लास्ट में उन important questions को देखें, practice करें and it can help you in the board exam. So for you people, I am here with those questions chapter wise. सो हम लोग अब चैप्टर वाइज उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं एट द लास्ट मोमेंट ऑफ रिविजन एंड इट विल श्योरली हेल्प यू इन एग्जाम्स. सो these are the questions from chapter 1. So we will take all questions one by one. So we will start from question number 1. Exponent of 5 in prime factorization of 3750. आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 3750 का एंड देन आपको 5 के एक्सपोनेंट बताने हैं. सो हाउ विल वी स्टार्ट? सबसे पहले वी विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर, then we will come to the exponent. So 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 5s are 10. Now we'll divide by 3, 6 2 5. Now we'll take up 5 and then 5 again and this is the prime factorization of 3750. So you have to tell exponent of 5. So 5 के exponents कितने हैं? So first we will write 3750 as product of its prime. So we can say 2 multiply 3 to the power 1 only because both are single time 2 and 3 and then 5 has power 4. So this is the prime factorization for 3750 and they asked us the exponent of 5 only. So 5 has exponent 4. So exponent of 5 equal 4. If they ask you the sum of exponents, so आप लोग सारी पावर ऐड करेंगे. If they ask you the product of exponents, so you will multiply all the powers and likewise. Okay, I hope you understood this question. Now come to the second question. If LCM of 12 and 42 is 10m plus 4, then m is. आपको दिया हुआ है कि 12 एंड 42 का एलसीएम इज दिस मच. फिर आपको m की वैल्यू निकालनी है. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट एलसीएम बाय आर मेथड. सो वी विल कैलकुलेट एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 टुगेदर. So we are getting LCM like this. So LCM of 12 and 42 equal 2 3 are 6, 6 2 are 12 and 12 into 7, 84. So according to us LCM should be 84, but for them 10m plus 4 is LCM. So since both the numbers are giving you LCM, these two LCM, so they must be equal. So this implies 10m plus 4, or you should write according to question 10m plus 4 equal 84. 10m equal 84 minus 4, that is 80. 10m equal 80, so m equal 8. So whenever you get LCM in the form of m, n or any other constant, so you just take the LCM or HCF जो भी बोला गया and then keep them equal. So this way you will do such problems. Now these are important problems. Always keep in mind to revise them before your board exam. So the next question is 3 alarm clocks are ringing at regular interval of 20, 25 and 30 minutes. 3 clocks हैं आपके पास, तीनों अलग अलग टाइम पर अलार्म रिंग कर रही हैं. तीनों का टाइम अलग अलग है, 5 मिनट्स का डिफरेंस है. सो इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12, एट व्हाट टाइम दे विल बीप अगेन. यानी तीनों एक साथ 12 बजे बीप करती हैं. तो अब आपको नेक्स्ट कॉमन टाइम तीनों वॉच का यानी तीनों क्लॉक्स का बताना है. तो हम जानते हैं जो जितने भी नंबर्स होते हैं उनका कॉमन टर्म क्या होती है. यानी आप कहें तो कॉमन नंबर्स 3 नंबर में, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 नंबर्स लाइक 2 3 and 4. तीनों में आने वाला कॉमन नंबर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द मल्टीपल ऑफ 2. सो 4 6 8 10 12. LCM we can say multiple of 3 9 12. 4 8 12
and so on. So we can say 12 is the first common multiple of all three. So 12 is the LCM of all three numbers. LCM means is least common multiple. तीनों में आने वाला पहला कॉमन नंबर. तो जो तीनों में आने वाला पहला टाइम कॉमन टाइम होगा वही तीनों के लिए वैलिड है, यानी तीनों एक साथ उसी टाइम रिंग करेंगे. सो यानी हमें तीनों का मिलाना है LCM. सो वी विल फाइंड आउट LCM ऑफ ऑल थ्री. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास उनका कॉमन मिनिमम मीटिंग टाइम क्या होगा, या तीनों के एक साथ किस टाइम रिंग करेंगी, या तीनों लाइट्स या 4 लाइट्स वट एवर बी द नंबर, कि वो एक साथ कब शो होंगे. तो जब भी आपको कितनी भी n ऑब्जेक्ट्स का कॉमन मिनिमम टाइम निकालना हो, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको LCM ही निकालना है. सो LCM निकालेंगे हम तीनों नंबर्स का. So we got the LCM of three numbers as, so we will write LCM bracket 20, 25, 30 equal 2 into 2 into 3 into 5 into 5. 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60, and 65 the 300, and the numbers were in minutes, so the common minute time is 300. So 300 minute ऐसा टाइम है जिसमें तीनों एक साथ बीप करेंगे, लेकिन वो 300 मिनट्स आपको बताना है 8 वाट टाइम. अब 12 बजे के बाद ये 300 मिनट्स अगर और बढ़ जाए तो टाइम क्या हो जाएगा. सो वी नो 300 मिनट्स को अगर हमें चेंज करना है आवर्स में, तो मिनट को आर में लाने के लिए वी डिवाइड बाई 60 एंड इट विल बी इन आर. सो 0 to 0 एंड 6 5 से 30, यानी 5 आवर्स के बाद ये बेल दोबारा रिंग करेगी. सो कैन वी राइट फर्स्ट कॉमन रिंगिंग टाइम आफ्टर 12 नून इज. 12 बजे के बाद आपको 5 o'clock शो करने हैं. सो कैन वी राइट 5 PM. सो 12 बजे के बाद अगर 5 आवर्स और बढ़ा दिए जाएं, सो वी विल बी गेटिंग 5 PM in evening. So I hope you must be getting these questions. Now come to the next one. Next question number 4 is, a forester wants to plant 66 apple trees, 88 banana trees and 110 mango trees in equal row. Each row containing only one type of fruit. Find the minimum number of rows required. यानी there is a forester, उसके पास 3 तरह के ट्रीज प्लांट करने का सोर्स है. उसके पास 66 एप्पल ट्रीज़ हैं, 88 बनाना है और 110 मैंगो ट्रीज़ हैं. वो तीनों टाइप के प्लांट्स की एक रो बनाना चाहता है, मतलब कि, और एक रो में एक ही टाइप का फ्रूट आना चाहिए. यानी कि उसके पास 66 एप्पल ट्रीज़ हैं, आफ्टर दैट 88 बनाना ट्रीज़ एंड देन 110 मैंगो ट्रीज़. आपसे पूछा जाए कि आप कितनी रोज़ तीनों की बनाएंगे कि कम से कम रोज़ बने. सो आप जानते हैं रोज़ कम से कम कैसे होंगी, जब एक रो में ज़्यादा प्लांट होंगे. अगर आप एक रो में कम कम प्लांट लगाएंगे तो रोज़ ज़्यादा बननी शुरू हो जाएंगी, जबकि आपको रोज़ को मिनिमाइज़ करना है. रोज़ कम होंगी कब, जब एक रो में आप ज़्यादा प्लांटिंग करें. और ज़्यादा प्लांटिंग का मतलब है हाईएस्ट नंबर रखना है आपको प्लांट्स का, और हाईएस्ट इज़ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल थ्री. यानी तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही आपको बताएगा कि एक रो में कितने प्लांट्स रखने हैं आपको. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको ओवरऑल क्वांटिटी यानी जैसे कि रोज़, लाइन्स, रूम्स, इनको मिनिमाइज़ करना होता है, तो याद रखिएगा जब आप ओवरऑल को मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो ईच रो में या ईच रूम में आपको मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है स्ट्रेंथ को, ताकि कम से कम चीज़ें यानी कम से कम रूम, कम से कम रोज़ यूटिलाइज हो सके. सो यू गॉट इट. यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम, लेकिन हम निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. वाई? क्योंकि हमें रोज़ को मिनिमम करना है. अब रोज़ मिनिमम कब होंगी, जब एक रो में ज़्यादा प्लांट आएंगे, और ज़्यादा प्लांट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हमें क्या करना है, तीनों का एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि एक रो में सबसे ज़्यादा प्लांट कितने लग सकते हैं, जो कि तीनों में कॉमन होना चाहिए. अब आपको तीनों का निकालना है HCF. सो वी विल फाइंड आउट HCF ऑफ ऑल थ्री नंबर्स. सो आई एम डूइंग हेयर 66, 88 and 110. So divide by 2,
11, and then we have, okay, 11 ones are 11. So can you see what is the HCF of 66, 88 and 110? You see HCF is the common term, so we can see 2 is present everywhere, so 2, and then 11, so 11 2s are 22, यानी कि उस फॉरेस्टर को एक रो में 22 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स की क्वांटिटी है जो एक रो में लग सकती है ताकि कम से कम उसे रोज़ मिले। तो आप जानते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास एप्पल ट्रीज तो है 66 और एक रो में कितने लगा रहा है 22। तो 22 अगर एक रो में लग रहा है तो एप्पल ट्रीज की ही अकेले कितनी रो बनेंगी? आप जानते हैं 66 डिवाइड बाई 22 यानी 3 रोज आपकी एप्पल ट्री की बनने वाली हैं। सो वी विल राइट नंबर ऑफ रोज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब आपको फाइनल नंबर निकालना होता है तो आप डिवाइड करते हैं ईच अवेलेबल डाटा टू, किससे डिवाइड करेंगे? विल डिवाइड बाई HCF। सो 66 टोटल एप्पल ट्रीज थे, एक रो में 22 लगाने हैं तो यानी 3 रोज एप्पल ट्रीज की प्लस 88 डिवाइड बाई सेम HCF 4 रोज बनाना ट्रीज की and 110 divided by 22 and 5 rows mango tree. So total number of rows are 5 and 4 9 and 3 12 rows. I hope you understood it. तो यानी हमें 12 rows बनानी पड़ेंगी, कम से कम rows 12 तो बनानी ही हैं। 12 रो होंगी तो उसमें ये सारे प्लांट्स एडजस्ट हो जाएंगे इस तरीके से कि एक रो में एक तरह का प्लांट ही रखा जाएगा। एप्पल कि अगर आप प्लांटिंग देखेंगे तो 3 रो बनेगी, बनाना के लिए 4 रोज एंड मैंगो के लिए 5 रोज। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रहे जहाँ भी ऐसे आपको मिनिमाइज करना हो फाइनल डाटा को तो आप इंटरनल वैल्यू को मैक्सिमाइज करते हैं बाय टेकिंग HCF, और पीछे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल का भी एग्जाम्पल लिया है। सो यू मस्ट प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। Next is find HCF and LCM of two given numbers. These are form of algebraic expression. आप HCF LCM ऐसे नंबर्स का निकालना जानते हैं, बट ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके बहुत, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए HCF LCM निकालने का तरीका क्या है। So HCF of A, B, because we are having two numbers A and B, and same we are doing for LCM for A and B. So always remember highest common factor HCF कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन होता है और उनकी लीस्ट पावर, क्योंकि लीस्ट पावर ही दोनों में कॉमन होती है। सो फर्स्ट वी विल सी एक्स की लीस्ट पावर हेयर इट इज़ 1 और यहाँ एक्स क्यूब, so least one will be only x. What about the y? Y has least power square, so xy square is the HCF of given two numbers. So याद रखिएगा जब भी आपको HCF बताना हो just take the common टर्म और कॉमन की भी लीस्ट पावर। एलसीएम में उल्टा करना है, कॉमन लेकर उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है और बचा हुआ नंबर भी एलसीएम में लिया जाता है। सो इफ वी हैव एक्स सो वी विल सी एक्स एंड पावर मैक्सिमम इज 3 एंड y इज अगेन कॉमन, पावर मैक्सिमम इज 3। इन केस यहाँ z भी होता तो एलसीएम में हम z भी नोट करते, क्योंकि आपको कॉमन वाला नहीं है जो, वो भी नोट करना होता है। आई होप आपको ये HCF LCM समझ में आ गया होगा। So now the next important problem is irrational. How to show given number is irrational. So we know that we have to show irrational number with the help of contradictory method. So I am showing the method to show any given group of number as irrational. So you have to follow this method in every form. जहाँ पर आपको a plus b की फॉर्म मिले, रैशनल इरेशनल नंबर भी उसमें हो, आपका a minus b मिले, a by b मिले और a डॉट b मिले, जिसमें आपकी इरेशनल नंबर इन्वॉल्व हो। सो सबसे पहले हम गिवन इरेशनल नंबर को सपोज करते हैं रैशनल। सो ऑन कॉन्ट्रेरी it is sure that you will get a question from this type out of this chapter in exam, so carefully understood this. On contrary, let us suppose that 3 minus 2 root 2 is rational. I told you this method in the starting of the series which we started for the chapter wise problem. So I am just repeating out as it is the important question. So सबसे पहले suppose करना है, we are supposing that this number is rational. So we know अगर कोई number rational होता है so it can be written in the form of p upon q, where p and q are integers
and q should not be 0. This is the basic definition of rational number. So हम जानते हैं कि ये p upon q की फॉर्म में लिखा जाएगा अगर रैशनल नंबर है तो, जहाँ पर p and q हमारे इंटीजर्स हैं. सो व्हाट वी डू, ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ भी मिक्स फॉर्म में आती है आपकी रैशनल और इरेशनल एक साथ आ जाए, तो आप क्या करते हैं, इरेशनल के अलावा सबको शिफ्ट करते हैं राइट साइड टू p by q. तो कैसे शिफ्ट करेंगे, सो -2√2 एज इट इज, p upon q प्लस 3 इधर आकर -3 एंड अपॉन 1 टू गेट एलसीएम. सो वी हैव -2√2 equal q LCM and then cross p ones are p and -3q. So now the next term is of -2 multiply में है √2 के, so it will go in division. So that is equal to √2 equal p -3q divided by -2q. So can we see here that an irrational number √2 can't be equal to a rational number. This is rational number p -3q upon -2q. Why is it rational? Because numerator and denominator both are integers. So is it possible that an irrational number is equal to rational? No. So we put cut sign. Okay, this is not equal. So why it is giving contradiction? Because we supposed wrong. So our assumption is wrong because we are getting wrong statement. रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा मिल रहा है हमें कि इरेशनल और रैशनल बराबर बैठ रहे हैं, जबकि ये गलत स्टेटमेंट हुआ, तो इसका मतलब हमने रॉन्ग सपोज किया है. सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस वी कैन राइट 3 - 2√2 is irrational. So this is the most easiest way to solve problems like them. So always remember this type of question comes in exam, so be ready with this type of solution. याद रखिएगा कैसे करना है. So always give like this answer, irrational can't be equal to rational. This is the easiest and the shortest way. So I hope you understood these questions which are going to be highly important for your exam. So don't miss them. अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन आई विल कम इन द नेक्स्ट वीडियो बाय टेकिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2. सो वील कीप दिस सीरीज अप. So in order to watch all the videos, just turn on your notification and also subscribe our channel if you didn't subscribe till now. Thank you so much.